Welcome students of class 10th. Once again, it's a geography period now. Now chapter number 6 we are doing, and chapter is manufacturing industries part 3. So before starting the topic, just see the recapitulation what we have done till now. Factors affecting industrial location, that is geographical factors, which also means physical factor, non-geographic factor also called human factor, and the classification of industries on the basis of resources that we have done, on the basis of raw material, on the basis of ownership, and so on. So these all things we have done. Now before starting the topic, let us having the learning outcome of this today's topic. At the conclusion of this video lecture, students will be able to, first one is write the different factor responsible for the high concentration of cotton mills in Maharashtra and Gujarat. And the second one is students will be able to identify the major problem faced by jute industries. And third one is students will be able to list the reason and impact on decentralization of sugar mills from northern to southern states of India. So these are our learning outcomes. Now let us start the topic now. Our today's topic is based on agro-based industries. So agro-based industries have been divided into 3 parts over here according to the chapter or topic. First one is cotton textile, second is jute textile, and third is sugar industry. Now, what do you mean by agro-based industries? First of all, you should know the meaning of agro-based industries. Agro-based industries are those industries whose raw material comes from agriculture. बच्चों, जो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज वो हैं जहाँ से एग्रीकल्चर से खेती बाड़ी से उसका रॉ मटेरियल आए और उसको हम इंडस्ट्री में यूटिलाइज कर सकें. दैट इज कॉल्ड एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री. सो नाउ we have over here that is a textile industry. Textile industry also include that is cotton, woolen, and silk, and so on. So it is India having a good position, a unique position in the Indian economy. It contribute near about industrial production 14%, and that is employment generation. It is 35 million peoples. It is the second largest after agriculture. Agro-based industries are second largest. Clear? Then if we think about that is about the foreign exchange, it is about 24.6%, and it contribute 4% towards GDP. सो बेटे एक बार ध्यान रखना है आपने, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट इज़ सेल्फ रिलायंट, सब कुछ आत्मनिर्भर है अपने ऊपर ही. ठीक है, मतलब कि फ्रॉम रॉ मटेरियल अप टू फिनिश्ड गुड्स ऑल आर दैट इज कम अंडर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. इट इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री. नाउ लेट अस स्टार्ट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. नाउ फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज स्टार्टेड इन मुंबई 1854. क्लियर? So now most of the time the question comes in the exam, that is why the cotton textile mills are largely located in Maharashtra and Gujarat. Now here is the answer why it is located. ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कॉटन की वो महाराष्ट्र ही गुजरात में क्यों कंसनट्रेट हैं, ऐसी क्या कारण है ऐसा? तो उसका पहला कारण देखें, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन एज ए ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रेजेंट ओवर देयर. ब्लैक कॉटन सॉइल आपको पता होना चाहिए, ब्लैक सॉइल को बोला जाता है, उसका एक और नाम है रेगर सॉइल. तो वो वहाँ पर है, इसलिए ब्लैक सॉइल इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन. दैन सेकंड वन इज़ गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्लूड पोर्ट फैसिलिटीज़. जो महाराष्ट्र एंड गुजरात है यहाँ बताया गया, इट इज़ नियर टू द पोर्ट, तो वहाँ से सामान लाना और भेजना बहुत ही आसान हो गया. दैन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, चीप लेबर इज आल्सो इजीली अवेलेबल. एंड लास्ट वन इज़ गुड मॉइस्ट क्लाइमेट. So these are the factors over there. That is why most of the cotton textile are located near in the Maharashtra and Gujarat. Now main exporters, कहाँ हम अपना सामान इसको भेजते हैं हम कॉटन टेक्सटाइल का? टू जापान, USA, UK, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज. Now there are near about 3 methods to obtain that is cotton textile या produce cotton clothes. फर्स्ट वर्ड इज हैंडलूम्स. हैंडलूम मीन्स जो भी हम काम करते हैं हाथों के द्वारा बाय हैंड, उसे बोला गया हैंडलूम बोला गया है. एंड सेकंड इज पावर लूम, जो काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. एंड थर्ड वन इज मिल्स, जिसमें पूरा काम कपड़े को धागे बनाने से लेकर कपड़े का पूरा काम करना, मिल्स में सारा काम किया जाता है. तो ये दीज आर द 3 यहाँ पे मेथड्स बताए गए हैं जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन के कपड़े वगैरह बनते हैं यहाँ पे. Now that is cotton textile industry involve that is gaining and spinning, weaving, dyeing, designing, tailoring and packaging to produce ready-made garments. Now over here there is a now over show किया गया फ्लो चार्ट शो किया बेटे यहाँ पर आपको कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है. तो इट इज़ गिवन ओवर देयर. सबसे पहले हम जो रॉ कॉटन को उगाएंगे
एग्रीकल्चर के अंदर, खेतों के अंदर। उसके बाद उसकी हम सॉर्टिंग करेंगे, फिर उसको स्पिनिंग करेंगे, फिर उसको निटिंग करेंगे, फिर वीविंग, उसके बाद उसको डाइंग करेंगे, मतलब कि कलर का रंग करेंगे उसको। उसके बाद जाके जो गारमेंट्स हैं, मतलब जो कपड़े हैं, वो तैयार होते हैं और वो फिर हमारे पास मार्केट में आ जाते हैं बिकने के लिए। दैट इज ऑल ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट वन इज ओवर, दैट इज व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी मुसीबतों को भी सामना करना पड़ता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। अब वो चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फर्स्ट वन इज स्कार्सिटी ऑफ द गुड क्वालिटी कॉटन। जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन है वो हमारे कंट्री में नहीं मिल रहा है, अब नहीं ग्रो कर पा रहे हम। मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया। जो अच्छा जो ग्रोइंग एरिया था हमारे पास, कॉटन ग्रोइंग एरिया था, वो सारा कहाँ चला गया, टुवर्ड पाकिस्तान। देन ओल्ड मशीनरीज, आज भी हम जो है आउटडेटेड मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हमें चाहिए मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके, हमारे कपड़े का जो क्वालिटी है और इम्प्रूव हो सके। देन रैटिक पावर सप्लाई, मतलब कि पावर सप्लाई, बिजली भी लगातार नहीं है, कई बार कट लग जाते हैं तो इसके कारण की सप्लाई पूरी रुक जाती है। देन लो आउटपुट फ्रॉम लेबर, चीप लेबर अवेलेबल नहीं है या उनका आउटपुट लो नहीं है, कोई क्लाइमेट प्रॉपर सूटेबल नहीं होता, ज़्यादा गर्मी या सर्दी, जिस कारण की ये सब चीज़ें जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। एंड लास्ट वन इज टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। कॉटन के जो कपड़े हैं उनको मेन कंपटीशन कौन दे रहा है यहाँ पर, सिंथेटिक फाइबर्स दे रहे हैं, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं थोड़ी उनमें चमक होती है, ठीक है, तो इसलिए वो लोग उसको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कॉटन। बट कॉटन इज़ द बेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉटन के कपड़े सबसे बेस्ट रहते हैं हमारे अपने लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉटन टेक्सटाइल मिल्स बेटे इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये अगेन इसको चेक कर ले ध्यान से। फर्स्ट वन इज़ इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, सूरत अगेन गुजरात के अंदर बताया गया, मुंबई महाराष्ट्र में है, देन कोयम्बटूर तमिलनाडु एंड मदुरई अगेन तमिलनाडु, एंड लास्ट वन इज़ कानपुर इन उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये आपको कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इंडिया में कहाँ लोकेटेड है ये आपको आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्री इज जूट इंडस्ट्री। नाउ ओवर हेयर जूट इंडस्ट्री जो है हमारा कंट्री जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है जूट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। एंड देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन अवर कंट्री। बट जब से हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ है, बिकॉज बांग्लादेश अलग हो गया है इंडिया से अलग, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया हमारा जो है वो बांग्लादेश के अंदर रह गया है, जूट ग्रोइंग एरिया। तो हमारी इंडस्ट्री हमारे पास रह गई, बट जो ग्रोइंग एरिया था वो कहाँ रह गया, बांग्लादेश के अंदर रह गया। तो हमारी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा सेटबैक लगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई यहाँ पर। तो फर्स्ट जूट मिल कहाँ लगाए रखी यहाँ पर, रिश्रा दैट इज कोलकाता के अंदर 1859 के अंदर। अभी जूट से क्या क्या चीज़ें बनती हैं बताया गया, रोप, बैग्स, कारपेट एटसेट्रा। अब ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज, अगेन वन मोर क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड अलॉन्ग हुगली रिवर। क्यों हुगली रीजन में ऐसा क्या एरिया, हुगली रिवर के ऐसे क्या कारण है जो कि वेस्ट बंगाल में है कि वहाँ पर ही ज़्यादातर जो है जूट इंडस्ट्री लोकेटेड है, वाई? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट रीजन टिक करते जाएं इसको या लिखें इसको याद से, समझ लें ध्यान से। रॉ जूट इज अवेलेबल रेडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, क्लियर है। सेकंड इज इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। थर्ड वन इज गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दिया गया यहाँ पर रेलवे, रोडवे, वाटरवे फैसिलिटीज दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद अबंडेंट ऑफ वाटर सप्लाई, जूट के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। देन चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल से है या एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वहाँ से हमें चीप लेबर मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज कलकत्ता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर है प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़। कलकत्ता से बहुत सारे बैंक हैं जो लोन प्रोवाइड कर देते हैं, इंश्योरेंस दे देते हैं, या पोर्ट फैसिलिटीज़ है जो कि जूट का जो सामान रेडी होता है बनकर हम दूसरे कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी कर सकें। देन नेक्स्ट वन इज ओवर हेयर देयर आर सम फोटोग्राफ ओवर देयर, कैसे कैसे ये प्रोसेस चलता है। ये पहले ग्रो कर रहे हैं, उसको फिर पानी में डिप करते हैं, उसको अलग करते हैं, उसके बाद उसके जो है डिफरेंट चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं, गुड्स तैयार की जाती हैं, फाइनली वो हमारे पास पहुंच जाता है। देन आफ्टर दैट चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। फर्स्ट वन इज हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फार्मर जो है धीरे धीरे जूट को ग्रो करना कम कर रहे हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है बेटे, यहाँ पर जूट को कहाँ स्टोर किया जाए। अगेन शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई, और जो ग्रोथ ऑफ जूट मिल्स हैं मैंने पहले तो कर बता चुका हूँ कि हमारे पास जो ग्रोइंग एरिया है जूट का वो कहाँ पर रह गया है, बांग्लादेश के अंदर है, जिस कारण जो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा हमारे कंट्री के अंदर, जिस कारण की जूट मिल्स काफ़ी लोगों ने बंद कर दी हमारे कंट्री के अंदर। और एरिया दिए गए हैं ब्राज़ील, फिलीपाइंस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। देन लॉस ऑफ फॉरेन मार्केट, एमरजेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स
और जूट के अलावा बहुत सारे नए सब्सिट्यूट्स आ गए हैं, जैसे कि प्लास्टिक गुड्स आ गए यहाँ पर, या फिर सिंथेटिक सब्सिट्यूट्स आ गए हैं, वो अगेंस्ट गनी बैग्स, मतलब कि वो लोग परचेज करना चाहते हैं, नॉट एज टू दैट इज जूट को पसंद करना थोड़ा कम करना शुरू कर दिया है, प्लास्टिक की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान चला गया, या फिर क्योंकि उनको पता है कि प्लास्टिक जो चीज़ें हैं वो वाटर प्रूफ होती हैं तो बेटर है एज़ कम्पेयर टू जूट। बट जूट जो है आपको पता होना चाहिए बेटे, इट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल, हमें ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी कि इसका यूज़ ज़्यादा करें, कोई ये सब चीज़ें बताएगी। इट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जल्दी इन्वायरमेंट में ख़त्म नहीं होंगी, तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए जूट इंडस्ट्री के ऊपर। देन लॉस ऑफ डिमांड फॉर जूट गुड्स बोथ एट होम एंड अब्रॉड। देन प्रॉब्लम्स, जो आपके चैलेंजेस थे जूट इंडस्ट्री के, उसके सोल्यूशन कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। इसका मेन मोटिव था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द जूट एंड फार्मर्स को अच्छा जो प्राइस मिल सके, जिससे कि फार्मर्स जो हैं वो इसे ग्रो करें। क्लियर है बेटे। नाउ नेक्स्ट वन इज जूट इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। असम में है, नगांव, एंड मेन इंडस्ट्री जो है लोकेटेड है वो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता के अंदर। क्लियर है, यहाँ पर नियर द हुगली रिवर। That is all over here. Now let us start the third industry, that is the sugar industry, चीनी। क्लियर है, इसे पंजाबी में कहते हैं खंड कहते हैं, तो वो यहाँ पर देखते हैं शुगर इंडस्ट्री। नाउ सो शुगर इंडस्ट्री, इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। क्लियर। नाउ इंडिया ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंड सीरी, मतलब गुड़ और शक्कर, उसके लिए हमारी जो कंट्री है वो फर्स्ट पोजीशन लाई कर रही है। रॉ मटेरियल इज वेरी बल्की, द सेकंड लार्जेस्ट एग्रोबेस इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद ये हमारे सेकंड नंबर पे ये एग्रोबेस इंडस्ट्री आती है, शुगर इंडस्ट्री। 2010-11 में देखा जाए तो हमारे कंट्री में 662 शुगर मिल्स हमारे कंट्री में हैं, जो कि स्प्रेड हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। मोस्ट ऑफ दिस मिल्स आर नियर द शुगर कल्टिवेटेड एरियाज, क्योंकि जहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं उसी के पास ही शुगर मिल्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल थोड़ा बल्कि है। अगर शुगर मिल्स दूर होंगी और जो ग्रोइंग एरिया और दूर होगा तो मुश्किल पड़ जाएगी, इसलिए जहाँ ग्रोइंग एरिया उसी के पास हम शुगर मिल्स को लगाएंगे वहाँ पर। क्लियर है। नाउ शुगर मिल्स, वाई द क्वेश्चन इज नाउ अगेन द अवर सेकंड अवर थर्ड एलो जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर नाउ, कि वाई द शुगर इंडस्ट्रीज आर मूविंग फ्रॉम नदरन टुवर्ड सदर्न इंडिया। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंट्रीज में, हमारी कंट्री के अंदर नदरन से सदर्न में क्यों शिफ्ट कर रही है शुगर इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो हमारा कंट्री जो यहाँ पर है, यहाँ पर यूपी, बिहार जो है ये मेन प्रोड्यूसर है शुगर केन के यहाँ पर अब धीरे धीरे इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटका के अंदर शिफ्ट कर रही है। उसका मेन कारण क्या है? तो फर्स्ट रीजन इज दीज स्टेट्स हैव बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ग्रोइंग शुगर केन। जो महाराष्ट्र, कर्नाटका है, यहाँ पे ज़्यादा शुगर केन मिल्स ज़्यादा लगाई जा रही हैं, कारण है उसका बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन। सेकंड है हायर सुक्रोज कंटेंट। थर्ड है कूलर क्लाइमेट एंड लॉन्गर क्रशिंग सीजन। और लास्ट में है कोऑपरेटिव सेक्टर्स या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इन दीज states. Now major challenges, again problems faced by the sugar industry include the seasonal nature of the industry. बट ये पूरे साल नहीं चलती इंडस्ट्री, 8-9 महीने चलती है, उसको बंद करना पड़ता है क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, इस कारण उसको बंद करना पड़ता है। देन ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द केन टू फैक्ट्रीज, नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेजेस। नाउ अगेन ओवर हेयर अ मैप, कहाँ कहाँ पे हमारी शुगर केन इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन है, कहाँ कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर 10 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, 10 के, तो इसको लोकेट करें, यहाँ पर टिक कर लें। यहाँ पर यहाँ पर फर्स्ट है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये बेटे ये हमारी नॉर्दर्न की स्टेट्स हैं। नाउ कम टू द सदर्न स्टेट्स। नाउ अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है एंड दैट इज़ गुजरात। तो दीज आर सम स्टेट्स ओवर हेयर जहाँ पे शुगर केन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं या मिल्स हैं ज़्यादा यहाँ पर हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, थैंक यू।